السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج میں اس مختصر سی میٹنگ میں آپ حضرات سے بہت ہی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے عملوں کے قبول ہونے کی شرطیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہم میں سے ہر بندہ اور اللہ کی ہر بندی رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا شکر گزار بندہ اور بندی بننے کے لیے ہر ایک اللہ کی توفیق کے بعد محنتیں کر رہا، کوششیں کر رہا ہے، فرض عبادتوں کی ادائیگی میں اہتمام، نفلوں کی پابندی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ باتوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کمی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی عبادت ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، اور اللہ تعالی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، چنانچہ وہ عبادت ہی سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ہماری گردنوں کو رب کائنات اپنی عبادت ہی سے، اپنی مہربانی سے آزاد کرے گا جہنم سے۔ ہر ایک آدمی کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ تڑپ اور جستجو ہے کہ اس کی ہر عبادت قبول ہو، اللہ راضی ہو جائے، پسند فرما لے۔ تو جس طرح عبادت کرنا ضروری، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو آپ لوگ جانتے ہیں، اسلام ہے، اور اسلام کا معنی ہے اللہ کا تابعدار ہو جانا، اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اطاعت و بندگی کے لیے سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی توحید کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، شرک اور شرک کرنے والوں کو ناپسند کرنا، اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی اور دین قبول کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اسلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم لوگوں کو اسلام کی نعمت کبریٰ سے مالا مال فرمایا۔ دوسری شرط عبادت کے قبول ہونے کے لیے ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں، ہماری نیتوں میں اخلاص پایا جائے۔ اخلاص، 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 ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں، ہمارے فعل میں، ہماری نیتوں میں اخلاص پایا جائے۔ اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے، کتنی ہی قیمتی چیز اس میں خرچ نہ کر دی جائے، وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اخلاص کے لغت کے اندر اخلاص کہتے ہیں بالکل صاف ستھرا و پاک، ملاوٹ نہ ہو، ذرہ برابر اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص۔ جیسے مثال کے طور پر یہ عطر گلاب ہے، اب اگر
اس میں خالص گلاب ہی کا عرق ہو، لیکن سوئی کے ایک نوک کے برابر اگر اس میں کیوڑا کا پانی ڈال دیا جائے تو یہ خالص گلاب نہیں ہوگا، بہت خوشبودار ہے، خالص گلاب نہیں ہوگا، یعنی کسی طرح کی اس میں کوئی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی بکری کے تھن سے دودھ نکالا، پانی بالٹی یا لوٹے میں پوچھ لیا، صاف کر لیا کپڑے سے، دودھ تھن سے ڈائریکٹ نکالا، اب اگر اس میں سوئی کے نوک کے برابر آپ نے کیمیکل ملا دیا، پانی ملا دیا، تو خالص دودھ نہیں مانا جائے گا، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ اور آمیز۔ تو جو خالص، یعنی جس عمل کے اندر، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ اس عبادت کے ذریعے خالی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید، بنا کسی دکھاوا، ریاکاری اور شہرت، یا بنا کسی دنیاوی مصلحت میں کامیابی حاصل کرنے کی نیت سے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ فَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرو۔ اللہ للہ الدین الخالص، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھ لیجیے، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ انسان کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے 12 تک، سورہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی عبادت، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے افطار کرایا، آپ نے صدقات و خیرات کیا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ کہا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، وغیرہ وغیرہ، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو، شہرت مقصد نہ ہو، دنیا کا کوئی مصلحت یا منفعت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، تب جا کر کے عبادت قبول ہوگی۔ ورنہ کتنی بھی بڑی عبادت ہو، اگر اخلاص نہیں ہے، اس میں ریاکاری کی ملاوٹ ہے، شہرت طلبی کی ملاوٹ ہے، دنیاوی مصلحت کی ملاوٹ ہے، اللہ اسے پھینک دے گا۔ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی عبادت کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر، اپنے ناموں کے اندر، وہ اللہ اپنی ربوبیت کے اندر، اللہ ذرہ برابر بھی ملاوٹ، ساجداری نہیں پسند کرتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ آج افطار اپنے گھر پہ بنائے اور لوگوں کو کھلایا، مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی و فیاض کہیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرا چرچا کریں، لوگ میرے کھانے اور ڈش کی تعریف کریں، بلکہ یہ خالص ہمارے اور اللہ کے درمیان، اس کا مقصد، محنت کا، خرچ کا مقصد اللہ کی رضامندی، ریاکاری و شہرت نہ۔ اور میرے بھائیوں، جتنا اخلاص عبادتوں کے اندر بہت ہی اہم ہے، اتنا اخلاص بچانا بہت ہی کٹھن ہے۔ عملوں میں اخلاص پیدا کرنا جتنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی نیتوں میں اخلاص باقی رکھنا، ریاکاری سے بچانا بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا رہتا، کبھی شیطان نفس عمارہ، بگڑا سماج، انسان کے اندر ریاکاری شروع ہی سے لے آتا ہے، ابھی کام کیا نہیں لیکن کام کا چرچا ریاکاری، یا کام کرتے وقت ریاکاری لے آتا ہے، یا کام کرنے کے 2-4 دن کے بعد، 2-4 گھنٹے کے بعد، یا 2-4 مہینے کے بعد، 2-4 سال کے بعد ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، عمل ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص کرے، تو عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، ذرا اس پر دھیان دیجیے گا میرے بھائیوں، میرے بہنوں۔ اور ایک بات اور جانیں، 3 چیزیں ہیں جو اخلاص کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے دکھاوا، عمل کو ظاہر کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یعنی عبادت کو ادا کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو پسند کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، مجھے اپنی امت پر
जिस चीज का सबसे ज्यादा खतरा और डर है वो छिपा हुआ शिर्क, शिर्क खफी। कहला शिरकुल खफी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कराम ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क खफी क्या है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अरिया, दिखावा। अल्लाह ताला नियतों में इखलास पैदा करना। हम तकरीर करने समझा रहे हैं, अगर नियतों में रियाकारी है, लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी तकरीर को पसंद करेंगे, लोग शेयर करेंगे, मकसद यही होगा दिखावा, अल्लाह महफूज रखे, तो अमल बर्बाद हो गया। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया युज़य्यिन रजुल सलातहु लियराहु रजुल। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, अपने हिसाब से पढ़ रहा था, बगल में कोई आके खड़ा हो गया, उसने महसूस किया फला साहब आ गए, अब और नमाज में खूब डिकोड बनावट खुशू खुशू करने लगा, ताकि वो बगल में देखने वाला आदमी समझे कि बड़ा कायदे का नमाज पढ़ता। रियाकारी इखलास को बर्बाद और तबाह बर्बाद कर देता है। दूसरी चीज इखलास को बर्बाद करने वाली शोहरत हासिल करने का मकसद, प्रोपगंडा, शोहरत हासिल करना, किसी चीज को बयान करना, लोगों से अपनी उस इबादत को बयान करना, और इस बयान करने का मकसद ये है कि लोग उसको इबादत गुजार समझे। बहुत कुरान पढ़ने वाला है, बहुत सदका करने वाला, बड़ा इफ्तार कराने वाला है, बड़े रोजे रखने वाला है, मस्जिदों में सबसे पहले आने वाला है। शोहरत हासिल करना यानी वो लोगों से बयान करता है, चाहे जबान से, चाहे लिख करके, चाहे हरकत और अदा से, किसी भी तरीके से वो बयान करे लोगों से, और मकसद क्या हो, लोग उसे पसंद करें, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उससे पसंद करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सम्मा सम्माअहुल्लाहु बी, अगर कोई शख्स शोहरत हासिल करना चाहता है तो अल्लाह उसे शोहरत देती। जैसे नेता लोग ना शिलान्यास पहले कर देते हैं, काम बाद में करते हैं, बोर्ड लगा के शिलान्यास अपना बोर्ड पहले लगा देते हैं, काम बाद में करते हैं। अखबारों में पहले दे देते हैं, काम बाद में, करने के बाद भी अखबारों में देते। तो ज़बानी अखबार में हमारा अमल ना है लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, तो ये बयान करना किसी चीज को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शोहरत हासिल करना चाहेगा उसे शोहरत मिल जाएगी, लेकिन इबादत का सिला बदला और बेहतरीन फल उसे नहीं मिल पाएगा कभी भी। क़यामत के दिन खाली हाथ होगा, अल्लाह महफूज रखे मेरे भाई। नेकियां करने के बाद क़यामत के दिन रियाकारी और शोहरत तलबी वो बीमारी है जिससे उसकी नेकियां खाक हो जाएंगी, जला दी जाएंगी, कोई उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात याद है, अगर किसी दूसरे को इबादत पर उभारने के लिए, इबादत पर लोगों की हिम्मत अफजाई करने के लिए, खैर पर उभारने के लिए, खैर पर हिम्मत अफजाई करने के लिए दिल में इखलास की नियत करते, अगर कोई इबादत जाहिर की जाए तो रियाकारी नहीं, यानी उभारना मकसद हो, हिम्मत अफजाई करना मकसद हो, लोगों को तरगीब दिलाना मकसद हो, लोगों को शौक दिलाना मकसद। मिसाल के तौर पर एक आदमी कोई फकीर खड़ा हुआ है, गरीब है, कोई मदद नहीं करता, एक आदमी निकाला 500 की नोट दिया, उसकी नियत में इखलास है, लेकिन लोगों के सामने 500 की नोट दे रहा है ताकि लोग इस गरीब की मदद करें, लोगों के अंदर सदका करने का जज्बा पैदा हो, लोग गरीबों की मदद करें, तो ये इसका मामला नियत से, ये रियाकारी नहीं। इन तुब्दु सदकाती फनिअम्मा हिया, हस्बे जरूरत अगर अपने सदका को जाहिर करो तो एक बेहतरीन चीज है। सूरे बकरा आयत नंबर 27। लेकिन मसलहत है, जरूरत है, लोगों की तालीम मकसद है, लोगों को उभारना मकसद है, गरीब या जरूरतमंद की हाजत पूरी करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, भलाई पर रहनुमाई करने वाले को उतना ही अजर और सवाब मिलेगा जितना भलाई करने। आपने इखलास नियत के साथ, दो आदमियों को जरूरत थी, बिना जोर नहीं, जरूरत भी थी, 10 रुपए निकाल के किसी गरीब को सदका किया, और आपकी इखलास नियत के साथ सदका कबूल भी हुआ, और आपके सदके को देखकर लोगों ने सदका किया, तो इस पर आपको अजर सवाब मिलेगा। इखलास को बर्बाद कर देने वाला पहला काम रिया, दूसरा शोहरत, तीसरा है मेरे भाइयों इबादत करके दुनियावी मसलहत हासिल करना, दुनियावी खैर हासिल करना, दुनियावी बरकत, दुनियावी मनफात और दुनियावी फायदा हासिल करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 42 के अंदर,
इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिम, मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देते हैं हालांकि अल्लाह उन्हें धोखा देता है। क्या धोखा देखते हैं, आते हैं ऊपर से दिखाने के लिए, ऊपर से दिखाने के लिए नमाज रोजा करते हैं, अल्लाह के रसूल के साथ पहली सफा में रहते हैं, लेकिन अंदर कुफ्र छिपाए होते हैं, ताकि अल्लाह के रसूल से माल गनीमत को पाएं, मुसलमानों के तलवार से बचे रहें, इस्लाम को जाहिर करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा तुमना फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ है तो उसकी हिजरत कबूल होगी। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युस्बुहा, अगर किसी शख्स ने हिजरत की दुनिया हासिल करने के लिए, किसी औरत से शादी करने के लिए, तो उसको दुनिया मिल जाएगी, औरत से शादी हो जाएगी, लेकिन उसको कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। तो रिया, शोहरत और कोई इबादत या बंदगी दुनियावी मसलहत, दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए करने, ये तीनों चीजें इखलास को बर्बाद और रायगा कर देती। इबादत के कबूल होने के लिए पहली शर्त इस्लाम, दूसरी शर्त इखलास, तीसरी शर्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। हम बंदगी करेंगे अल्लाह की, इबादत करेंगे अल्लाह की, इबादत का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारा हर अमल, हर कौल, हर फेल, हर हरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित सही सुन्नत मुतहरा के मुताबिक हो। और इस सिलसिले में कुरान करीम के अंदर आयतें भरी पड़ी हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा, जब अल्लाह उसके रसूल किसी मामले के बारे में, उसके हक होने के बारे में, करने के बारे में, वक्त के बारे में, तरीके के बारे में, कैफियत के बारे में, मिकदार के बारे में, जिन्स के बारे में, जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर दे तो किसी को कुछ आनाकानी करने की गुंजाइश नहीं, उसको कोई इख्तियार ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने कह दिया जिस्म के 7 आज़ा पर सजदा करो, 7.25 नहीं रखेंगे, 7.25 बिना उधर से नहीं। अल्लाह के रसूल ने कह दिया फजर में 2 ही रकात फर्ज है, खलास, 2.25 नहीं, 2.25 नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए रसूल अकरम की जिंदगी बेहतरीन आइडियल और नमूना। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, किसके लिए अल्लाह का रसूल नमूना है? जो आखिरत चाहता है, जो अल्लाह ताला से चाहता और आखिरत को चाहता है और अल्लाह को ज्यादा जिक्र करे। वमा आताकुम रसूल फखुदू, सूरह हशर की आयत नंबर 7, इसकी तफसीर आप देख लीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, अगर किसी शख्स ने हमारी सुन्नत की मुखालफत की, अपनी तरफ से कोई चीज कर लिया, कबूल नहीं। इबादत में इखलास, रियाकारी से बचना और नबी की सुन्नत की पैरवी। आज तरावी हम पढ़ते हैं 20 रकात, 22 रकात, किस तरह पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या कैफियत में, जिन्स में, वक्त में, मिकदार में, वगैरह वगैरह नबी की सुन्नत के पैरोकार हैं। आज तो इफ्तार करते हैं, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा कहते हैं इफ्तार थोड़ा 5 मिनट एहतियाती। कहां से एहतियात है? अल्लाह के रसूल ने कहा तो मातिमुस्सियाम इलल्लैल, रात तक रोजा रखना, रात का शुरुआत खत्म रोजा। सबीना लोग बनाएंगे, पैरवी है। तो इबादत और नमाज पर रोजा रखने के तरीके के बारे में नबी की सुन्नत की पैरवी। मेरे भाइयों, ये कभी मैं इत्तबा रसूल पर बोलूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। याद रहे कि अगर हमारी किसी भी बंदगी में, किसी भी अमल में, किसी भी कौल और फेल में इखलास नहीं है, नबी की सुन्नत की पैरवी नहीं है, वो अमल हमारे देखने में कितना ही महबूब पसंदीदा क्यों ना हो, कबूल नहीं। और अगर इखलास है, नबी की पैरवी नहीं है, नहीं कबूल होगी। नबी की पैरवी है, इखलास नहीं है, वह इबादत कबूल नहीं। लिहाजा मुसलमानों, हम अपने अमलों को अगर अल्लाह के दरबार में कबूल करवाना चाहते हैं तो इन 2 बुनियादी इखलास और नबी की पैरवी, 2 बुनियादी अहम शर्तों को अपनी इबादतों में पैदा करें, वरना भूख प्यास बर्दाश्त के अलावा, तरावीह में थकने के अलावा, कुरान में थकने के अलावा, सदकात और खैरात के पैसे के खर्च होने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, अल्लाह हमारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है। और हमें किसकी पैरवी करनी है?
पैदा किया है हमारे रब ने, पैरवी इबादत उसी की करनी है। हमारे रब ने पाबंद कर दिया, जा बंदा तेरे लिए एक अनोखा निराला सबसे अफजल सबसे महबूब तेरे साथ मेहरबान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा। तेरा हर अमल, खाना पीना, सोना, जागना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, तरावीह पढ़ना, कुरान पढ़ना, सारा अमल बस उन्हीं से ले ले, उन्हीं के तरीके के मुताबिक। जाहिर सी बात है एक बोझ और आएगा जब हमें अपनी नियतों में इखलास पैदा करना है, अपने अमलों में नबी की सुन्नत की पैरवी पैदा करनी है ताकि इबादत कबूल हो। तो हमें दीन का सही इल्म हासिल करना चाहिए, लल्लू पंजू से नहीं, कुरान और सही सुन्नत का सही इल्म हासिल करना पड़ेगा मनहज सलफ़े सालिहीन के मुताबिक। ये नहीं कि फला मौलवी साहब ने ये कह दिया था, ये नहीं कि मैं तो हनफी था, ये नहीं कि मैं तो शाफई था, मैं तो हम्बली था, मैं तो मालिकी था, मैं तो सारवर्दी था, मैं तो कादियानी था या कादिली था या चिश्ती था या बरेलवी था या तबलीगी था। यह नहीं चलेगा। क्या था? सहाबे कराम के मनहज के मुताबिक, सलफ़े सालिहीन के तरीके के मुताबिक कुरान और हदीस को पर चलने वाला। एक हाथ में रब का कुरान था, दूसरे हाथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, और वो सुन्नत जो सही सनद से साबित हो, वाही तबाही की चीजें नहीं, ज़ईफ और मनगढ़ंत चीजें नहीं। याद रखो नबी का ये पहला हक है उन पर ईमान लाने के बाद कि हम उससे मोहब्बत करें, उससे अकीदत करें, अपना कौल फ़िल और अमल सारा नबी के कदमों पे कुर्बान कर दें। हर एक की बात ली जा सकती है और हर एक की बात छोड़ी जा सकती है। आज मसला चल रहा है रमजान मुबारक के अंदर 20 रकात पढ़ा जाए या 13 रकात तरावी पढ़ी जाए या 11 रकात पढ़ी जाए। कहाँ तामक तो यहाँ मार रहे हैं हम और आप। देख लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है, आपका कौल ले लो, आपका अमल ले लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तरावी पढ़ी थी, खुलफाए राशिदीन ने पीछे पढ़ा था। किफायत नहीं करता, नबी की सुन्नत हमारे लिए काफी नहीं है, नबी का तरीका हमारे लिए काफी नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, हम ज्यादा नबी से आगे बढ़ने वाले हैं। नबी ने 11 या 13 पढ़ा, साबित कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने 20 रकात पढ़ी, पढ़ ले, आपका अमल नहीं, आपका अमल नहीं। और किस तरह पढ़ा? फला तसला अंतुलहिन्ना व हुस्निहिन्ना। अब आयशा बयान करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के लंबे और खूबसूरती के बारे में मत पूछो। पहले मुबारक में वर्म आ जाता था, आज तो पटापट 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 पटापट। ये 20 रकात की तरावी पढ़ने वाले मक्का मदीना के अलावा जाके अपने हिंदुस्तान में, अपने पाकिस्तान, ना खुशू है, ना खुदू है, ना इत्मीनान है, ना एतदाल है, और ना कुरान की तिलावत में तरतीब और तरतील है, मजाक है। आज वीडियो पे नशर किया जाता है। एक वीडियो आज हमारे व्हाट्सएप पर हमारे जिले जमीयत बलरामपुर के ग्रुप ने भेजा, खूब एक्सरसाइज कर रहा है इमाम साहब। मुसलमानों, बंदे बन जाओ रब की, बंदगी करो रब ही की। बंदे हो रब की, बंदगी करो रब ही की। मुसलमानों, नबी के उम्मतियों, कुर्बान जाओ अपने आखिरी पैगंबर पर। रब की बंदगी की तरीका तौर तरीका रब के सबसे करीबी जो है उससे ले लो, छोड़ो, खलास। जो तुम्हारे रब के सबसे ज्यादा करीबी है, सबसे ज्यादा महबूब है। कौन सबसे ज्यादा महबूब है आप जानते हो, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तहकीक करनी पड़ेगी, असबियत का चश्मा उतारना पड़ेगा, हक को कबूल करना पड़ेगा, असबियत का चश्मा उतारना पड़ेगा, ताअस्सुब से वरे होना पड़ेगा, परे होना पड़ेगा, ताअस्सुब से बालातर होना पड़ेगा। ये ताअस्सुब कहीं इलाकाई ताअस्सुब, कहीं मजहबी ताअस्सुब, कहीं मसलकी ताअस्सुब, कहीं जमाअती ताअस्सुब, इससे बरी हो। अलैकुम बिसुन्नती, इसको पर गिरह लगाना पड़ेगा, तब जाके इबादत कबूल की। याद रखो, जिस अगर नियतों में रियाकारी है, शोहरत तलबी है, दुनिया की मसरत हासिल करना मकसद है, इबादत आएगा बर्बाद। इसी तरीके से अगर इबादत में नबी की सुन्नत की पैरोकार नहीं, हमारी किसी भी बंदगी पर नबी की सही सुन्नत का स्टाम्प नहीं है, मोहर नहीं है, वह इबादत कबूल नहीं हो सकती मेरे भाइयों।
खतरे में ना रहो अपने आप को। ऐसा ना हो थक के जाओ, चूर होके जाओ, खच होके जाओ, भूख को प्यास बर्दाश्त करके जाओ और रोज़े क़यामत रब कायनात के सामने खुशफहमी में जब हाजिर हो तो पता चले हमारा सारा अमल नबी की सुन्नत के खिलाफ था, नबी के तरीके के खिलाफ था, नबी के इरशादात के खिलाफ था। ये हमारी नियतों में, हमारे अमलों में थे, लेकिन रियाकारी, दिखावा, दुनिया में मकसद था। आज लोग इफ्तार करा रहे, बड़ी अच्छी चीज है। लोग मसले पूछते हैं, इफ्तार का सवाब, नेताओं को बुलाना कैसा, आप जानो, आपका अमल जाने। किस माल से इफ्तार करा रहे हो, किस माल से इफ्तार करा रहे हो, किस लिए इफ्तार करा रहे हो, किस माल से इफ्तार करा रहे हो, किस लिए इफ्तार करा रहे हो, किसको इफ्तार करा। इफ्तार रोजेदार को कराया जाएगा, इफ्तार हलाल माल से कराया जाएगा। इफ्तार कराने का मकसद रब की रजा है, ये शोहरत नहीं, ये शोहरत नहीं। बस एक मिसाल दे रहा हूं मेरे भाई, ये ढंढोरा नहीं। तो इफ्तार किस लिए करा रहे हो, किसको करा रहे हो, किस माल से करा रहे हो, ये आप जानो, आपका रब। हम कुछ नहीं फतवा लगाएंगे, लेकिन कोई ऐसा ज़ाहिरी अमल न करो कि लोग कम इल्म लोग आप पे फतवा लगाएं। तो इबादत के कबूल होने के लिए ये 2 शर्तों का, बल्कि 3 शर्त, इस्लाम जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने माला माल किया, दूसरी शर्त इखलास, तीसरी शर्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। अगर ये तीनों शर्तों से हमारा कोई अमल खाली है तो बिल्कुल बेकार, बेसूद है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नियतों में इखलास अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबके जरिए हिदायत दे। और चलते चलते आप सबसे एक भीख मांग रहा हूँ, अता रहमान सईद को अपने खालिस दुआओं में याद रखना। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे जरिए हिदायत दे, अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे जरिए लोगों को बख्शिश का रास्ता दिखाए। हमारा हर अमल आप सब के लिए, हमारे अब्बा और अम्मा के लिए, हमारे असातिज़े किराम के लिए, या जिन लोगों ने हमारी तालीम और तरबियत में कुछ भी मदद की है, अल्लाह ताला उनके लिए सदक़े जारिया बना दे और कबूल फरमा ले, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।